Amen. Amen. All right. Open your Bibles with me. Let's open it to Matthew chapter 8. We will read from verse 5. तो अपनी बाइबल मत्ती 8 पर खोले, हम 5वीं आयत से पढ़ेंगे. Matthew chapter 8 verses 5. मत्ती 8 उसके 5 से. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him. और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती करने लगा, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है, लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है. And Jesus said to him, I will come and heal him. और यीशु ने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. The centurion was telling Jesus that you don't need to come, you just have to release a word. वो सूबेदार यीशु से कह रहा था कि प्रभु, आपको आने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप एक वचन कह दे. Amen. आमेन. And Jesus marveled at the centurion's faith. और यीशु हैरान हो गए इस सूबेदार के विश्वास को देखकर. A great faith is a faith that understands how the word works. एक महान विश्वास वो है जिसको ये पता है कि वचन क्या काम करता है. Amen. If you would only know अगर आपको केवल इतना पता लग गया that our labor in the kingdom is to just find the spoken word of God. कि राज्य में आने के बाद जो हमें मेहनत करनी है वो बस इतनी करनी है कि जो बोला गया वचन है वो खोजना है. Amen. The breakthrough that you're looking for, जो छुटकारा आपको the चाहिए, healing that you're looking जो for, चंगाई आप चाहते the हैं, deliverance that you're looking जो for, आजादी चाहते the हैं, promotion that you're looking जो for, तरक्की चाहते हैं, the prosperity you're looking for, जो समृद्धि चाहते हैं, it's in the word. वो सब कुछ वचन में छुपी है. It's not in a bottle of oil, तेल की बोतल में नहीं है, it's not in a bottle of water, पानी की बोतल में नहीं है, it's not in any man's hand, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, it's in the word. लेकिन वो वचन में छुपा है. Amen. And if you can learn to dig deep and take out that word which is for you, और अगर आप ये सीख गए कि इस वचन के गहराई में जा करके उस खजाने को निकालना जो आपके लिए रखा है इसमें, that word will not go void. वो वचन कभी खाली नहीं जाएगा आपके जीवन से. Amen. So many people are looking for so many things. बहुत से लोग बहुत कुछ तलाश रहे हैं. All we need is a word. हमें सिर्फ उसका वचन चाहिए. Amen. And this centurion knew that. He said, Jesus, if you would only speak a word. और इस सूबेदार को ये बात पता थी, इसलिए उसने कहा, यीशु, केवल अगर आप वचन ही कह दोगे. Amen. आमेन. If you would only speak a word, my servant would be healed. अगर आप केवल वचन बोल दोगे तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा. If we would only learn अगर हम केवल ये सीख गए to receive the word of God by faith. परमेश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण करना. You know that every promise in the word of God, God has given it for you. आपको पता है परमेश्वर ने अपने वचन में हर एक वादा आपके लिए ही दिया है. But it will not happen automatically. We will have to learn to possess it by faith. लेकिन वो अपने आप पूरा नहीं होता, हमें सीखना पड़ेगा विश्वास से उस वादे पर कब्जा करना. Amen. Amen. That's why we come to church. इसीलिए हम कलीसिया आते A church is not a religious building. हैं. कलीसिया कोई धार्मिक जगह नहीं है. A church is the educational institute of the kingdom. कलीसिया राज्य के द्वारा रखा गया पढ़ाने और प्रशिक्षित करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है. Amen. Where the children of God are trained so that they can walk from victory to victory to victory to victory. जिसको परमेश्वर पिता ने इसलिए रखा है ताकि वो परमेश्वर के बेटों और बेटियों को सिखाए कि कैसे वो जय में अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जय में जी सकते हैं. Amen. Church, if you will only understand that and if you can only get that our answer is in the word. अगर आप केवल ये समझ गए कि हमारा जो उत्तर है, जो जवाब हम ढूंढ रहे हैं, वो वचन ही में मिलेगा. When you open your Bible, when you read Genesis, the way God introduces himself is a creator God. In the beginning, God created heavens and the earth. जब आप उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर ने अपना परिचय दिया तो उसने एक रचनात्मक परमेश्वर के रूप में अपना परिचय दिया, ये कहते हुए कि
आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। And how did he create? और कैसे बनाया उसने? He spoke. उसने बोला, He spoke the word. उसने वचन को बोला। Amen. आमेन। As our God is a creator God because he still speaks. हमारा परमेश्वर आज भी रचनात्मक है क्योंकि वो आज भी बोलता है। Amen. And whatever you see around you, he created everything by speaking. और जो कुछ आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सब कुछ उसने बनाया बोल करके। Get it? लेकिन हम ये नहीं समझते। We think our words mean nothing. हमें लगता है हमारे शब्दों की कोई मूल्य थोड़ी है, कोई कीमत थोड़ी है। Before the words were used for communication, Come on. words were used for creation. इससे पहले कि शब्दों का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए किया जाता, शब्दों का इस्तेमाल रचना करने के लिए किया गया है। Amen. We think it's just noise creating some vibration in our eardrums. No, no, no. Words are very powerful in the spirit realm. हमें लगता है केवल कुछ आवाज हो रही है, कुछ सुनाई दे रहा है क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, लेकिन शब्दों की बहुत सामर्थ्य है आत्मिक दुनिया में। See, we think the answer to our healing is in a bottle of medicine. The centurion knew that the answer to his servant's healing was a spoken word. हमें लगता है कि हमारी चंगाई का जो रहस्य है वो एक शीशी में एक दवाई की गोली में बंद है, लेकिन इस सूबेदार को पता था कि उसके नौकर की चंगाई का जो रहस्य है वो बोले गए वचन में छुपा है। Amen. We always want something tangible. Give me something so that I can know. But Jesus said this centurion's faith is great because he understood the power of a word that is released under the unction of the Holy Spirit. हम हमेशा तलाशते हैं कि कुछ छूने के लिए हमें मिल जाए, जिसको हम कुछ ठोस, जिसको परख कर हम कह सके कि हाँ इससे हो जाएगा। लेकिन इस सूबेदार ने उस वचन पर, उस बोले गए वचन पर भरोसा कर लिया, इसीलिए उसका विश्वास महान गया। And you know what is the amazing thing? आपको पता है अद्भुत बात क्या है? This centurion didn't know that Jesus is the Son of God. इस सूबेदार को ये नहीं पता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। He didn't come to Jesus as a son of God. He knew Jesus as the prophet, as the man of God. वो यीशु के पास इसलिए नहीं आया था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन इसलिए कि यीशु एक भविष्यद्वक्ता है, ये सोचकर। Amen. Look around you. अपने आसपास देखें How are blessings invoked? कैसे आपके जीवन में आशीषें काम करती हैं। Through speaking. बोलने के द्वारा। How did Isaac bless Jacob? इसहाक ने याकूब को कैसे आशीष दिया? He spoke. उसने बोला। There is something that Jews understood that we don't understand. कुछ तो है जो यहूदी लोग समझते थे और हम नहीं समझते। God bless you has become such a cliche. प्रभु आपको आशीष दे एक कहावत बन गया है। Sometimes people use it when they're offended. कई बार जब नाराज होते हैं लोग तब इस्तेमाल करते हैं उसको। Oh, God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे। Oh, God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे। We say it as if it's nothing. हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं है इसका। But blessings carry great weight in the spiritual realm. लेकिन आशीषों का बहुत भारी वजन है आत्मिक दुनिया में। When a mom and dad जब एक माँ बाप start to bless their children, अपने बच्चे को आशीष देना शुरू करते हैं, something happens in the spiritual realm. आत्मिक दुनिया में कुछ बहुत भारी होता है। Amen. Do you know the power of words? क्या आप शब्दों की सामर्थ्य को जानते हैं? When John the Baptist had to be born, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होना his था, father Zechariah, who was a high priest, उसका पिता जकराया जो महायाजक था उस समय, he didn't believe. उसने विश्वास नहीं करा कि उसको उस बूढ़ी उम्र में बच्चा हो सकता है। He was doubting. वो शक कर रहा था। So God had to shut his mouth so that John the Baptist could be born. तो परमेश्वर को जकराया का मुंह बंद करना पड़ा जब तक उसका जन्म नहीं हुआ उसके बेटे का, जॉन द बैप्टिस्ट का। For many people, their miracle has been aborted because of their big mouth. कई लोगों की जिंदगी में जो काम पूरा हो जाना चाहिए था, जो चमत्कार उनको मिल जाना चाहिए था, उनके बड़े मुंह की वजह से नहीं मिल पाया। Because they keep speaking what God doesn't speak about them. क्योंकि वो हमेशा वो बोलते रहे जो परमेश्वर के बारे में नहीं बोल रहा। Let's see a scripture. आइए हम एक आयत देखते हैं। Are you ready? Proverbs 30:32. नीति वचन 30 उसका 32। If you have done foolishly in exalting yourself, or if you have thought evil, lay your hand upon your mouth. यदि तूने अपनी बढ़ाई करने की मूर्खता की
या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख। God is saying, if you are thinking evil in your heart, बाइबल कह रही है अगर तू अपने दिल में कुछ बुरा सोच रहा है, put a hand on your mouth, अपने हाथ को अपने मुंह पर रख दे, because sooner or later क्योंकि आज नहीं तो कल that evil thought is going to become evil word. वो बुरा विचार आज नहीं तो कल बुरे शब्द बन सकता है। And the Bible says और बाइबल कहती है that you are in bondage because of the words of your mouth. बाइबल कहती है तू शिकंजे में फंसता है अपने ही शब्दों के कारण। Some people are like, oh, Satan is so powerful. Satan isn't that powerful. He cannot do anything unless he gets our agreement. और कुछ लोग कहते हैं शैतान बहुत शक्तिशाली है, शैतान ये करता है वो, लेकिन शैतान बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता जब तक हम सहमत ना हो उसके साथ जो वो करना चाहता है। He is looking for your agreement, church. वो आपकी हाँ को तलाश रहा है चर्च। And what he does is he gives you thoughts. और वो ये करता है वो आपको विचार देता है। And he wants you to meditate on them, think on them. और वो चाहता है कि आप उन विचारों के बारे में सोचें, उन पर मनन करते रहें। That's how he tempted Eve. इस तरह से उसने हवा को बेवकूफ बनाया। Has God really said? क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? Has God really healed you? क्या परमेश्वर ने सच में तुम्हें ठीक कर दिया? Then why do you have this symptom? तो फिर ये लक्षण क्यों दिख रहे हैं? Has God really forgiven you? क्या परमेश्वर ने तुम्हें सच में माफ किया? Is God really good? क्या परमेश्वर सच में भला है? And sooner or later, when we keep meditating on those thoughts, और आज नहीं तो कल जब हम उन विचारों में मनन करते रहें, they start to spill out of our mouth. वो हमारे मुंह से निकलने लग जाते हैं। And demons are waiting for our words. और दुष्ट आत्माएं इंतजार कर रही हैं हमारे शब्दों का। Should I continue? आगे बताऊं? But what would happen if we would fill our heart with the word of God? लेकिन क्या होगा अगर अपने दिल को हमने परमेश्वर के वचन से भर डाला तो? And you keep meditating on the word day and night. और हम वचन पर मनन करते रहे दिन और रात। You know, so many people are poor not because they do not have good opportunities. बहुत से लोग गरीब इसलिए नहीं कि उनके पास अच्छे मौके नहीं आते। So many people are poor because the enemy has still bound them in poverty in their mind. वो इसलिए गरीब है क्योंकि दुश्मन ने आज भी उनके मानसिकता में उनको गरीबी में बांध रखा है। Because they still believe क्योंकि वो आज भी ये मानते हैं that it's God who wants us poor, it's God who wants us sick. क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम बीमार रहें, हम गरीब रहें। The Bible says, let the name of God be magnified who is pleased in the prosperity of his servants. बाइबल कहती है परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए जो अपने सेवकों की समृद्धि से प्रसन्न होता है। If God was pleased by the prosperity of his servants in the old covenant, how much more when we are his sons and daughters in the new covenant? जब परमेश्वर पुराने नियम में अपने दासों के अमीर होने से खुश होता था, प्रसन्न होता था, तो और भी कितना ज्यादा जब नई वाचा में हम उसके बेटे और बेटियां ठहरे हैं और जब हम समृद्ध होते हैं तो वो प्रसन्न होगा। Amen. आमीन। Satan is after our thoughts, शैतान हमारे विचारों के पीछे है, but so is God. लेकिन परमेश्वर भी हमारे विचारों के पीछे है। Because the enemy knows where the real deal is. क्योंकि दुश्मन को पता है असली मुद्दा क्या है। If he can bound you with wrong thinking in your heart, you will always have wrong manifestation in your life. अगर आपके दिल में गलत विचारधारा में, बुरी विचारधारा में उसने आपको बांध दिया तो आपके जीवन में उसका प्रभाव गलत ही दिखाई देगा। If you have thought evil, lay your hand upon your mouth. अगर आपने कुछ बुरा सोचा है तो अपने मुंह पर अपना हाथ रख दें। Amen. आमीन। Do you know what is evil in God's definition? पता है परमेश्वर की नजरों में बुरा क्या है? Any thought of unbelief is an evil thought. अविश्वास का कोई भी विचार। The Bible calls evil heart an unbelieving heart. बाइबल कहती है एक दुष्ट हृदय जो विश्वास नहीं करता। A heart that does not believe in the goodness of God is an evil heart. एक हृदय जो ये नहीं मानता कि परमेश्वर सच में भला है, वो एक दुष्ट हृदय है।
Amen? Are you alive, church? क्या आप जीवित हैं कलीसिया? Amen? आमेन। Let me tell you a principle. मैं एक सिद्धांत बता दूं। Everything in the kingdom, whatever is happening around us, it's according to our attitude to the word of God. जो कुछ हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द हो रहा है वो इसलिए हो रहा है जो मानसिकता हम परमेश्वर के वचन की ओर रखते हैं। Can I say this? क्या मैं कहूं? Your altitude in the kingdom depends upon your attitude towards the word. राज्य में आपकी ऊंचाई निर्भर है परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी मानसिकता को लेकर। The quality of life that you will live on earth depends upon the attitude you have towards the word of God. जिस श्रेणी का जीवन आप पृथ्वी पर जिएंगे वो निर्भर करता है उस मानसिकता पर या उस आदर पर जो आप परमेश्वर के वचन पर रखते हैं। Amen? Fill your mouth with the word. अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भरना। I said, fill your mouth with the word. मैंने कहा अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से Fill your mouth with the word. अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भर लो। Because the Bible says the word of God which is sent forth does not come back void. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जब अपने वचन को भेजता है तो वो खाली वापस नहीं आता, But it fulfills for which it was sent. लेकिन जिस मकसद के लिए वो भेजा गया उसको पूरा कर कर वापस आता है।